ہم نے سبق نیک بنو نیکی پھیلاؤ کی پڑھائی کی تھی اور کچھ سوال کیے تھے۔ آج ہم آگے کے سوال کریں گے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں۔ نظم میں سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیں جن میں حرف واو موجود ہے۔ تو اس سوال میں ہم نے ایسے الفاظ تلاش کرنے ہیں جن میں حرف واو ہو۔ تو چلیں نظم میں دیکھتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر یعنی پہلی 2 لائنیں جنہیں ہم مصرع کہتے ہیں، ان کو دیکھیے۔ جب بھی بولو پہلے تولو، اس کے بعد لبوں کو کھولو۔ تو یہاں واو 3 الفاظ میں موجود ہے، بولو، تولو، کھولو، اور کون سا لفظ ہے؟ چوتھا لفظ ہے لبوں۔ تو یہاں 3 نہیں بلکہ 4 الفاظ ہیں جس میں واو استعمال ہوا ہے۔ تو ان الفاظ کے نیچے ہم ایک لائن لگا لیں گے، بولو، تولو، لبوں اور کھولو۔ تو یہاں لکھ لیتے ہیں، بے واو بو لام واو لو، بولو، پھر ہے تولو، تے واو تو لام واو لو، تولو۔ اگلا لفظ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لبوں، لام بے واو، لام کے اوپر زبر ہے اور نون غنہ، لبوں۔ نظم میں بے کے اوپر شد نہیں ہے لیکن لبوں کے لفظ میں شد ہوتی ہے حرف بے کے اوپر۔ تو آپ بھی اس طرح شد اپنی کتاب پر ڈال لیجئے گا۔ اب چوتھا لفظ ہم لکھیں گے، کیا ہے؟ کھولو، کھے واو کھو لام واو لو، کھولو۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگلے شعر میں کون سے لفظ ہیں۔ نظم کا اگلا شعر ہے، پیاری پیاری باتیں کر لو، نیکی سے دامن کو بھر لو۔ تو یہاں کون سے لفظ ہیں؟ لو اور کو۔ تو ان دونوں کے نیچے بھی ہم ایسے ایک لائن لگا لیں گے۔ لو 2 دفعہ ہے تو ہم ایک ہی دفعہ لکھیں گے۔ تو اب یہاں لکھیں گے لام واو لو اور اگلا لفظ ہے کاف واو کو۔ ان دونوں کو بھی یہاں لکھ لیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلا شعر ہم اس کا نظم کا دیکھتے ہیں۔ بچے ہو اچھے بن جاؤ، سچ پیارا سچے بن جاؤ۔ تو یہاں کون کون سے لفظ ہیں جس میں واو ہے؟ ہو اور جاؤ، بالکل صحیح۔ جاؤ 2 دفعہ ہے تو ہم ایک ہی دفعہ لکھیں گے۔ اب آپ بھی ان دونوں الفاظ کے نیچے ایسے ایک لائن لگا لیجئے کہ ہم نے یہاں تک ڈھونڈ لیا ہے۔ تو یہ 2 الفاظ بھی ہم یہاں لکھ لیں گے، ہے واو ہو اور اگلا ہے جیم واو جا، معاف کیجیے گا، جیم الف جا اور واو حمزہ جاؤ۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلے الفاظ ڈھونڈتے ہیں۔ نظم کا اگلا شعر ہے، دلوں سے سب کو اچھا جانو، اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ تو یہاں ایک لفظ ہے کو جس میں واو آ رہا ہے، پھر ہے جانو اور مانو۔ تو یہ 3 الفاظ ہیں، یہ بھی آگے لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کاف واو کو ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اس لیے اس لفظ کو ہم نہیں لکھیں گے، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے پڑھا ہے جانو، جیم الف جا، نون واو نو، جانو، اور پھر ہے مانو، میم الف ما، نون واو نو، مانو۔ آپ بھی اسی طرح لکھیں۔ اب آخری شعر دیکھیں، مل جل کر یہ نغمہ گاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔
तो यहाँ कौन से हैं वाव वाले अल्फाज? गाओ, बनो और फैलाओ। तो इन तीनों अल्फाज को भी हम सवाल के नीचे लिख लेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। गाओ, गाफ अलिफ गा, और वाओ, वाओ के ऊपर हमजा, गाओ। फिर है बनो, बे नून वाओ, बनो, नुक्ते डालेंगे। और फिर क्या लफ्ज़ हमने पढ़ा था? फैलाओ, फे ये लाम अलिफ और वाओ के ऊपर हमजा, नुक्ते डाल लेंगे। और इस तरह हमने सारे अल्फाज जिनमें वाव था वो ढूंढ लिए। अब सवाल नंबर 7 है, तलाश किए गए अल्फाज के हुरूफ के गिर्द दायरा लगाएं। तो यहाँ एक लफ्ज़ के गिर्द उनके जो हरूफ थे उनको दायरा लगा हुआ है। कौन कौन से हैं हर्फ? खे, वाओ, लाम, वाओ। क्या लफ्ज़ बनेगा? खोलो, बिल्कुल सही। तो खोलो में हम एक छोटा सा ऐसा निशान लगा देंगे कि ये ढूंढा गया है, इसको अब दोबारा नहीं ढूंढना। अब यहाँ पहला लफ्ज़ है बोलो, इसके हर्फ ढूंढते हैं। बोलो में कौन कौन से हर्फ हैं? बे, वाओ, लाम, वाओ, बिल्कुल सही। अब ये ढूंढते हैं कहाँ लिखा है। बे, वाओ, लाम, वाओ। तो इसके गिर्द हम एक दायरा लगा देंगे कि हमने लफ्ज़ बोलो के हर्फ ढूंढ लिए हैं। आप भी अपनी किताब पर इस तरह दायरा लगा दें। तो बोलो पे भी हम ऐसा निशान लगा देते हैं। फिर लफ्ज़ है तोलो, अब इसके हर्फ ढूंढेंगे। तोलो में कौन कौन से हर्फ हैं? ते, वाओ, लाम, वाओ। तो यहाँ ऊपर की तरफ लिखा है ते, वाओ, लाम, वाओ। इसके गिर्द भी हम दायरा लगा देंगे कि हमने लफ्ज़ तोलो ढूंढ लिया। आप भी अपनी किताब पर ऐसे दायरा लगा लें। तोलो पर भी टिक लगा देते हैं, ऐसे निशान। फिर है लबों, लबों में कौन कौन से हर्फ हैं? लाम, बे दो दफ़ा है तो यहाँ लिखा हुआ भी दो दफ़ा होगा। लाम, बे, वाओ, नून गुन्ना। तो ये भी ढूंढ लिया, इस पे भी दायरा लगा देते हैं। आप भी दायरा लगाते जाएं कि हमने ये लफ्ज़ ढूंढ लिए हैं। लबों, यूँ मैंने दायरा लगा दिया इस पे। अब अगला लफ्ज़ ढूंढते हैं। लबों पर ये निशान लगा देंगे। खोलो पहले से ही मौजूद था, लफ्ज़ ढूंढा हुआ था उसके हर्फ। फिर है लो, लाम वाओ लो, इस पर टिक करते हैं और इसे ढूंढते हैं। तो कहाँ लिखा है लाम और वाओ? ये लिखा है, इस पर भी हम दायरा लगा देते हैं। लाम वाओ लो। फिर लफ्ज़ है को, कि को पर हम ऐसे टिक करते हैं और इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हमने काफ और वाव का हर्फ ढूंढना है। तो ये है काफ और इसके आगे वाव लिखा है। तो मेरी तरह आप भी अपनी किताब पर दायरा लगा लें। अगला लफ्ज़ है हो पर टिक का निशान लगाते हैं और अब इसे ढूंढते हैं। ढूंढिए कहाँ लिखा है हे और वाव का हर्फ। यहाँ लिखा है, ये हे है, गोल है, और वाव, इस पर भी दायरा लग गया। अब हमने ढूंढना है जाओ, जाओ पर टिक लगाते हैं। जाओ में कौन कौन से हर्फ हैं? जीम, अलिफ और वाव हमजा। तो यहाँ ये नीचे लिखा है जीम, जीम, अलिफ और वाव, तो इस पर भी दायरा लगा देंगे। अगला लफ्ज़ है जानो। अब जानो को ढूंढना है। जानो में कौन कौन से हर्फ हैं? जीम, अलिफ, नून और वाव। तो यहाँ ये लिखा है जीम, अलिफ, नून, वाव। इसके गिर्द दायरा लगा देते हैं। जीम, अलिफ, नून और वाव। आप भी अपनी किताब पर इस तरह दायरा लगा लें। अगला लफ्ज़ है मानो।
अब इसे ढूंढते हैं। मानों में कौन कौन से हर्फ हैं? मीम, अलिफ, नून, वाव। यहाँ ये लिखा है मीम, अलिफ, नून और वाव। इस पर भी हमने दायरा लगा दिया। आगे है गाँव। गाँव को ढूंढेंगे। गाँव में कौन कौन से हर्फ हैं? गाफ, अलिफ, वाव, हमजा। यहाँ ये लिखा है, इस पर दायरा लगाते हैं। गाफ, अलिफ, वाव और हमजा। वाव के ऊपर हमजा है तो इस पर भी हमने दायरा लगा दिया। अगला लफ्ज़ है बनो। अब इसे ढूंढना है। बनो में कौन कौन से हर्फ हैं? बे, नून, वाव। बे, नून, वाव। यहाँ ये हर्फ लिखे हैं। तो अब आप अपनी किताब पर इस तरह दायरा लगाइए। बे, नून, वाव। इस पर भी दायरा लगा लें। आखिरी लफ्ज़ रह गया है फैलाओ, तो इसे भी ढूंढ लेंगे। फैलाओ में कौन कौन से हर्फ हैं? फे, बड़ी ये, लाम, अलिफ और वाव हमजा। तो कहाँ लिखा है? ये लिखा है फे, बड़ी ये, लाम, अलिफ और वाव हमजा। तो इस पर भी मेरी तरह आप भी अपनी किताब पर यूँ दायरा लगा लीजिए कि हमने आखिरी लफ्ज़ के भी हर्फ ढूंढ लिए हैं। और यूँ हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया। अब देखें सवाल नंबर 8। दी हुई तस्वीरों को देखें और नीचे लिखे हुए अल्फाज पढ़ें। तो यहाँ 2 तस्वीरें हैं और उसके नीचे अल्फाज लिखे हैं। पहली तस्वीर है, उसके नीचे क्या लिखा है? एक चिड़िया। बिल्कुल सही। और आगे की तस्वीर में क्या लिखा है? 3 चिड़ियाँ। बिल्कुल सही। एक हो तो वो चिड़िया होगी और जब एक से ज़्यादा यानी 3 हो गई तो उसे हम चिड़ियाँ कहेंगे। नून गुन्ना लग गया, चिड़ियाँ। अब देखें यहाँ भी 2 तस्वीरें हैं, एक इस तरफ और फिर दूसरी तरफ। पढ़ें इनके नीचे क्या लिखा है? एक गाड़ी। बिल्कुल सही। और आगे क्या लिखा है? 2 गाड़ियाँ। बिल्कुल सही। एक हो तो गाड़ी है और जब 2 या 2 से ज़्यादा हों, जैसे यहाँ 2 गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ी नहीं होगा, गाड़ियाँ होगा, जमा हो जाएगा। अब नीचे देखें लिखा है इन मिसालों के मुताबिक अल्फाज को उनकी जमा से मिलाएं। तो यहाँ एक तरफ अल्फाज लिखे हैं और उनकी आगे जमा लिखी है। हमने लफ्ज़ को उसके सही जमा से मिलाना है। ये है वाहिद। इस तरफ वाहिद अल्फाज लिखे हैं। पहला लफ्ज़ लिखा है गुड़िया। अब दूसरी तरफ कौन कौन से लफ्ज़ हैं पढ़ते जाते हैं और इसकी जमा ढूंढेंगे। बिल्लियाँ, नहीं। तितलियाँ, नहीं। ये भी गुड़िया की जमा नहीं है। फिर है गुड़ियाँ। बिल्कुल सही। गुड़िया की जमा है गुड़ियाँ। तो हम एक लाइन के ज़रिए से ऐसे एक लाइन लगाएंगे और इसे आपस में जोड़ देंगे, मिला देंगे। गुड़िया, गुड़ियाँ। अब नीचे क्या लफ्ज़ है? लड़की। लड़की को किस से मिला सकते हैं? बिल्लियाँ, नहीं। तितलियाँ, नहीं। बकरियाँ, नहीं, इससे भी नहीं मिला सकते। लड़कियाँ, लड़की की जमा है लड़कियाँ। तो हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे एक लाइन के ज़रिए से। तीसरा लफ्ज़ है बिल्ली। बिल्ली और यहाँ लिखा है बिल्लियाँ। क्या हम इसे मिला सकते हैं? जी हाँ, बिल्ली की जमा है बिल्लियाँ। तो एक लाइन के ज़रिए हम इन दोनों को मिला देंगे। बिल्ली, बिल्लियाँ। फिर है तितली। तितली को हम किस से मिलाएंगे? तितलियाँ या बकरियाँ? तितलियाँ से मिलाएंगे क्योंकि तितली की जमा तितलियाँ होता है। तितली, तितलियाँ। इस तरह लाइन लगा दी। फिर आखिरी लफ्ज़ है बकरी। यहाँ क्या बचा?
बकरियां, तो बकरी की जमा तो बकरियां ही होता है, तो इन दोनों को भी मिला देते हैं। एक लाइन लगाएंगे ऊपर की तरफ, बकरी बकरियां, और यूं हमारा ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। आप भी अपनी किताब पर इसे मुकम्मल कर लें। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है।